It's almost better. Okay. Is this on? Mm-hmm. Hi, my name is Saurabh Bhardwaj, and as you know, I'm from Aam Aadmi Party. And I have with me our honorable guest, Mr. Dumelang, and he is, you can show him in the camera, and he is the president of Botswana Congress Party, which is the main opposition party. And like in India, they also have a controversy of electronic voting machines. So I'll say it in Hindi कि जैसे कि हमारे देश के अंदर EVMs के लेके काफ़ी विचार हो रहा है, काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, उसी तरह से मैं इस वक्त अफ्रीका के अंदर हूँ और मेरे साथ बोत्सवाना के अपोजिशन के प्रेसिडेंट, बोत्सवाना कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट मिस्टर दुमेलांग हैं। और हाल ही में हमने ये चर्चा सुनी थी कि बोत्सवाना के अंदर EVM मशीन्स का एक हैकेथन होने वाला है और वो हैकेथन जिन EVM मशीन्स के पास होना था वो EVM मशीन्स भी भारतीय कंपनी BEL ही प्रोवाइड कर रही थी। और हमारे यहाँ जो भारत के अंदर जो EVM मशीन्स इस्तेमाल होती हैं वो भी BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नाम की कंपनी प्रोवाइड करती है। और बहुत लोगों को बहुत दिलचस्पी थी कि क्या हम लोग, क्या भारत के लोग, क्या आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर, क्या कोई टेक्निकल एक्सपर्ट बोत्सवाना जाके वहाँ की भारतीय EVM मशीन्स को हैक करके दिखाएंगे, क्या वो वहाँ पे साबित करेंगे कि उन मशीनों को टेम्पर किया जा सकता है, उसके अंदर गड़बड़ी की जा सकती है, वोटों की धांधली की जा सकती है। और एक कई जगह ये खबर छपी भी। नाउ बिकॉज माई फ्रेंड डजंट अंडरस्टैंड my native language Hindi, so for the benefit of him I'll speak in English, that there was a lot of enthusiasm in the media and in India that if a hackathon happens in your country, Botswana, then people from India, technology enthusiasts from India and from international community may land in Botswana and do a hackathon and take part in the hackathon because it was the same company which provides EVMs in India, BEL, Bharat Electronics Limited, which is also providing the EVMs in your country, or which has proposed that they will provide. Like I have read it in the news reports, that everybody was very enthusiastic about it. And it was on 8th of May that this news got published that opposition parties and technical experts have been invited to do and hack these EVM machines. However, later in India, the BEL, the Bharat Electronics Limited, did come out with a press release saying that they were never part of this hackathon. And what would you like to say about it? Well, there obviously has been a lot of controversy in Botswana about the EVMs. We've never used EVMs. In the past 11 elections, we've always used ballot papers. Paper ballots. Yes. Yeah. Firstly, the way in which the law was changed, yes, was itself controversial. Okay. In that the minister had to come up with an urgent law. Right. And Parliament had to sit way beyond midnight to pass a law that introduces electronic voting. There's no consultation with the stakeholders. Right. There have been meetings that have been held to try and talk to Botswana about the EVMs once the law was passed. In many of those meetings, the population of Botswana is saying no. Okay. We don't trust the machines. We never asked for them. We don't have a problem with our current voting system. Now, recently, we are then informed that there will be no comparative bidding for the supply of the electronic voting machines, and that the electoral body has chosen Bharat Electronics Limited from India to supply the machines. That adds to the controversy. Why only one company? Why don't you open it up to comparative bidding? But nevertheless, I think in an attempt to try and address the concerns of the population, the electoral body organized a meeting where they said the experts from the BEL company will come, demonstrate how the machine works with the verifiable voter verification. VVPAT. Yes.
And that in addition to that, they will allow whoever wants to hack or to try and interrupt the machine to demonstrate how they can do it. They invited the technical experts. They made it an open, they wrote to parties. Yes. They wrote to media houses to say, bring anyone who thinks that they can hack the machine. Yeah. A few days before the meeting, we were made aware that there was some press release which was circulating in the media, originating from BEL, saying that they are not part of the hackathon, the hacking exercise. All they will do is to demonstrate how the machine works. So everyone who came for that meeting, with the expectation that there will be IT experts demonstrating how the machine can be interrupted, were disappointed because the announcement was that no, we will not have any of that, notwithstanding that the invitation had said they will be allowed to try and demonstrate how the machine can be interfered with. So how do people look at like a complete U-turn by a election commission? Because I can see, like you showed me this letter. Can you talk about this letter? I think this is a letter from your election commission. Yeah. It's a letter from the election commission addressed to political parties. My party also received the invitation dated on the 4th of May. And then it stated clearly in that letter that all guests with technical capabilities to hack or disrupt and compromise the secure performance of the EVM will be allowed the opportunity to do so. Now, obviously, most journalists that I've talked to who attended the meeting say that they think it was a circus. They don't understand why the Independent Electoral Commission is cartooning itself in this manner. And did the opposition parties attend that meeting? No, we stayed away. We stayed away because we would rather deal with the issue of the electronic voting in the courts. In the courts, We have registered a case against the electronic voting machine, and we are very confident that the courts are most likely to rule in our favor. That firstly, the electronic voting machine is not constitutional for the case of Botswana, but secondly, and equally importantly, that they can be hacked. And we will be seeking expert witnesses to assist, participate in this case, and demonstrate that the machines can be hacked. I'll explain it to my viewers in Hindi, whatever you are saying. तो ये बोत्सवाना की कांग्रेस पार्टी जो मेन अपोजिशन पार्टी है उसके प्रेसिडेंट हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हैं उनके, और जो खबर इंडिया के अंदर झूठ के माध्यम से फैलाई गई थी ये उसका खंडन कर रहे हैं. ये कह रहे हैं कि इनके इलेक्शन कमीशन ने ये खत इनकी सब पॉलिटिकल पार्टीज को लिखा था, और ये खत कोई आम आदमी पार्टी का बनाया हुआ नहीं है, अरविंद केजरीवाल का बनाया हुआ नहीं है. ये खत वहां की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जैसे हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन होता है उसी तरीके से ये का जो होता है वो इंडिपेंडेंट इलेक्टोरल कमीशन होता है रिपब्लिक ऑफ बोत्सवाना का. ये एक ऑफिशियल लेटर है जो वहां की इलेक्शन कमीशन ने सब राजनीतिक दलों को लिखा, सब मीडिया हाउसेस को लिखा, और ये 4 मई 2017 का है. इसका रेफरेंस नंबर इसके ऊपर डला हुआ है, और इसके अंदर खास तौर पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी लोग इसको हैक करना चाहते हैं, जिन लोगों को टेक्निकल कैपेबिलिटी है, जो लोग तकनीकी एक्सपर्ट हैं, वो लोग आए, इस मशीन को हैक करके देखें, इसकी सिक्योरिटी की परफॉर्मेंस को जांच कर देखें, इसको डिसरप्ट कर देखें, और उन सबको मौका मिलेगा इसको हैक करने का. ये खबर करीब 8 मई को मुझे लगता है इंडिया में कई जगह प्रकाशित हुई, और उसी दौरान वो समय था जब मैंने एक ईवीएम की तरह मशीन को, ईवीएम के एक रेप्लिका को दिल्ली असेंबली के अंदर टेम्पर करके दिखाया, हैक करके दिखाया कि कैसे आप एक सीक्रेट कोड डाल के सारी वोटों की चोरी किसी दूसरी पार्टी के लिए कर सकते हैं. मेरा ऐसा मानना है कि ये जो सरकारी खत है जो उनकी सरकार ने, उनके इलेक्शन कमीशन ने लिखा था, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी के बारे में बात कर रहे थे, वो थी BEL. क्योंकि उनकी जो ये इलेक्शन कमीशन है उन्होंने और किसी भी ईवीएम बताने वाली कंपनी से बात नहीं की है. उनकी ये जो प्रेस की रिलीजेस हैं, उनके यहाँ जो खबरें छपी हैं, उनके अंदर ये साफ तौर पे लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी ही इस हैकेथन के अंदर इनवाइटेड थी,
और उनको यहाँ पे हैक करने की लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी थी। मगर जो खबरें भारत के अंदर कुछ जगह छपी, मुझे लगता है कि शायद वो गलतफहमी थी, और जो प्रेस रिलीज था बीईएल का, उन्होंने ये कहा कि हम बोत्सवाना में हो रहे हुए हैकेथन का हिस्सा नहीं है। जैसे कि छपा, वी आर नॉट द पार्ट ऑफ बोत्सवाना हैकेथन, आवर ईवीएम्स आर नॉट द पार्ट ऑफ बोत्सवाना हैकेथन। मगर सवाल ये उठता है कि जब बोत्सवाना के अंदर ईवीएम्स सिर्फ और सिर्फ बीईएल की ही आई थी, जब वहां पे सिर्फ एक ही कंपनी इनवाइटेड थी जिसका नाम था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो भारत की ईवीएम बनाने वाली मशीन है, तो ये जो इनका रिलीज था, ये जो इनका लेटर था, ये किस कंपनी के हैकेथन के बारे में जानकारी दे रहा था? क्योंकि इन्होंने तो सिर्फ बीईएल को ही बुलाया था, और यहां तक कि इन्होंने ये भी बताया कि कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद वहां की सरकार के सामने बीईएल घबरा गई और बीईएल ने वहां से यू टर्न ले लिया, और बीईएल ने मना कर दिया कि हम अपनी मशीन को हैक करने का मौका नहीं देंगे। और उन्होंने कहा कि मीडिया के अंदर और वहां आए हुए लोगों के बीच में इस चीज का काफी मजाक उड़ा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब आपने उसको हैक करने के लिए लोगों को बुलाया और वहां पे आप हैक करने की किसी को अनुमति नहीं दे रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि जब हिंदुस्तान के अंदर ये बातें होने लगी कि हाँ, हिंदुस्तान से या बाहर से अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट जाके बोत्सवाना के अंदर उस मशीन को हैक करके, टेम्पर करके दुनिया को ये दिखा सकते हैं, अपने देश में ये दिखा सकते हैं कि इन मशीनों के अंदर गड़बड़ी हो सकती है, तो शायद बीईएल घबरा गई और बीईएल ने सोचा कि अब अगर हम बोत्सवाना के अंदर हैकेथन करेंगे तो हमारी गड़बड़ियां पकड़ी जा सकती हैं, हमारे गड़बड़ियों को दुनिया के आगे उजागर किया जा सकता है। और इसीलिए आखिरी मोमेंट पे उन्होंने इस हैकेथन से अपना यू टर्न ले लिया और इन्होंने ये बताया कि ये जो पार्टी है, इनकी जो अपोजिशन पार्टी है, जो मेन अपोजिशन पार्टी है, ये वहां के कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के अंदर ईवीएम्स के खिलाफ एक कोर्ट केस कर चुके हैं और वहां का कोर्ट अभी तक ईवीएम्स के काम को स्टे कर चुका है। मगर उनकी जो सरकार है, उनकी जो इलेक्शन कमीशन है, उसने दुनिया भर की सारी कंपनियों को छोड़ के सिर्फ बीईएल को टेंडर देने की प्रक्रिया शुरू की है। बीईएल को इन्होंने प्रोक्योरमेंट का ऑर्डर दिया है कि बीईएल से ही ये ईवीएम की मशीनें खरीदना चाहते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है ये बहुत सारे सवाल इकट्ठे करते हैं, बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं कि एक साधारण सा बोत्सवाना देश, जब उनके लोग, उनकी अपोजिशन पार्टियां इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि इस तरीके की ईवीएम मशीनों से चुनाव हो, क्योंकि इनको लगता है कि जब हमें कोई कागज के बैलेट से कोई परेशानी ही नहीं है तो हम ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल क्यों करें। और मैं देख रहा था, मैं इस वक्त देश में नहीं हूं, मगर अक्सर मैं मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा हूं, ट्विटर पे लोगों के संदेश देख रहा हूं। एक झूठा भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि हैकेथन कराया जा रहा है देश के अंदर, मगर आम आदमी पार्टी उससे भाग रही है, मगर कांग्रेस उससे भाग रही है। मैं जानना चाहता हूं कि वो हैकेथन कब कराया जा रहा है, और मैं जानना चाहता हूं और मैं बताना चाहता हूं लोगों को कि हमारे मीडिया के दोस्त और हमारे विरोधी कृपया करके गूगल पे जाएं, डिक्शनरी देखें और हैकेथन की डेफिनेशन समझें। गूगल के अंदर ढेरों देश हैं, आपको मिलेंगे, जानकारियां मिलेंगी जहां पे हैकेथन कराई गई हैं। बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगी जिसके अंदर हैकेथन कैसे किया जाता है और कैसे टेक्नोलॉजी एंथुजियास्ट उस हैकेथन के अंदर हिस्सा लेने के लिए आते हैं, आपको पता चलेगा। जैसा कि मनीष सिसोदिया जी ने कल बताया था, ये जो चैलेंज इलेक्शन कमीशन कर रहा है उसको वो खुद भी हैकेथन नहीं कह रहा, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि वो हैकेथन नहीं करा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऐसा कह रहा है कि आप आइए, मशीनों को खोल के आप नहीं देख सकते, मशीनों के अंदर क्या है वो आप जान नहीं सकते, मशीनों के मदरबोर्ड तक आप पहुंच नहीं सकते, मशीनों के सर्किट को आप पढ़ नहीं सकते। आप सिर्फ एक जादू टोना करके, कुछ आबरा का डाबरा करके, कुछ ऐसा मंत्र पढ़ के उसको हैक करके दिखाइए। मुझे लगता है कि ये एक मजाक वाली बात है, और कोई भी टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट जो टेक्नोलॉजी को समझता है, टेक्नोलॉजी को जानता है, वो जानेगा कि ये एक ऐसी बात है कि लोग कह रहे हैं कि आपका किले के अंदर सुरंग आ चुकी है, आपके किले को पीछे से चूहों ने खोद दिया है। और जैसे कि कल मनीष सिसोदिया जी ने बताया, मगर हमारा इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हम किले की बात नहीं करेंगे। आप दरवाजा देखिए, दरवाजा कितना मजबूत है, आप दरवाजे पे सिक्योरिटी देखिए, सिक्योरिटी कितनी मजबूत है,
और लोग ये कह रहे हैं, अपोजिशन पार्टी ये कह रही है कि अरे आप दरवाजे को छोड़िए, आप देखिए पीछे किले के अंदर सुरंग आ चुकी है, इसकी सिक्योरिटी ध्वस्त हो चुकी है, चूहों ने इसकी दीवारें खोद दी हैं। मगर हमारा इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि आप दीवारों की बात मत कीजिए, आप सुरंग की बात मत कीजिए, आप सिर्फ दरवाजा देखिए और दरवाजे की मजबूती देखिए। मुझे लगता है कि इसके अंदर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी की बात नहीं है, ये एक प्रजातंत्र की बात है, ये डेमोक्रेसी की बात है। और इसीलिए मैं अपने बोस्वाना के दोस्त के साथ बैठा हुआ हूं, क्योंकि इनका मुद्दा भी प्रजातंत्र को बचाने का मुद्दा है और हमारा मुद्दा भी प्रजातंत्र को बचाने का मुद्दा है। आई थिंक व्हाट आई एम सेइंग इज वी आर नॉट हियर टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट डेमोक्रेसी एंड वी शेयर अ कॉमन एम, वी शेयर अ कॉमन ऑब्जेक्ट, that is to save democracy, that is to protect the democracy. And very soon ये अपने कोर्ट के अंदर, अपने उच्च कोर्ट के अंदर, सबसे ऊंचे कोर्ट के अंदर ये अपील करेंगे कि आप हैकेथन का मौका दीजिए और उसके अंदर ये विश्व के एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे। इन्होंने हमें भी मौका दिया है कि हमारे एक्सपर्ट्स भी इनके देश पे जाएंगे, इनके देश की कोर्ट की अनुमति से, न्योते से हमारे लोग इनके देश में, इनके कोर्ट के आगे ये करके दिखाएंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को टेम्पर किया जा सकता है, हैक किया जा सकता है। दोस्तों, आप सब लोगों ने हमें सुना, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड थैंक यू सो मच that you are with us and you are sharing your views with us. Do you want to say something else? I think the most important thing is that what we consensus is that any voting system has to be a system that is credible, Yes. that all the players are happy with, Yes. that even the voter is convinced that their vote will be counted Right. as they cast it. Right. Now, that does not come out of the electronic Right. voting machine. Right. And for a country like Botswana that has refused to accept a lot of reforms like party funding, public party funding, Right. Public funding, yeah. Public funding of the elections. Of the elections, of Yeah. political parties. Yeah. Issues such as fair coverage of the political parties on state media. Yeah. they are Paid news. Paid news. refusing to accept all those things. And when they rush and want to come with electronic voting machines, Yeah. that brings suspicion. And we will do everything we can to make sure that it does not happen in the case of Botswana. थैंक यू सो मच। मैं बताऊं कि इन्होंने क्या कहा है, हिंदी में बताऊं। इन्होंने ये कहा है कि सस्पिशन यानी शक तब पैदा होता है जब बहुत सारे चुनाव के अंदर और भी अच्छी अच्छी चीजें हैं, चुनाव के अंदर बहुत सारे प्रोग्रेसिव चीजें हैं जो आप चुनाव सुधार कर सकते हैं, जैसा कि पॉलिटिकल पार्टीज की स्टेट फंडिंग, मतलब जो पैसे का जो पूरा का पूरा पैसे का जो बोलबाला है चुनाव के अंदर, उसको खत्म करके स्टेट फंडिंग की जाए। या इन्होंने कहा जो चुनाव के वक्त फेक पेड न्यूज, जो पैसे देके झूठी खबरें चलवाई जाती हैं अखबारों के अंदर, टीवी के अंदर, उसके चुनाव सुधार करने चाहिए। मगर इनकी जो सरकार है, इनका जो इलेक्शन कमीशन है, इन चुनाव सुधारों की चिंता नहीं कर रहा, मगर इस सुधार के पीछे पड़ा हुआ है कि किसी तरीके से वोटिंग मशीन को आप ले आइए। और मुझे लगता है कि ये जो बात इन्होंने अपने चुनाव आयोग के लिए कही और अपनी सरकार के लिए कही, वो ठीक वैसी ही हमारी इंडिया की सरकार के लिए और इंडिया के चुनाव आयोग के लिए भी है कि चुनाव आयोग बहुत सारे चुनावों के अंदर सुधार कर सकता है, चुनावों के अंदर पैसे के बोलबाले को खत्म कर सकता है, चुनावों के दौरान झूठे सर्वे जो आते हैं उनको खत्म कर सकता है, चुनाव के दौरान झूठे एग्जिट पोल जो आते हैं उनके ऊपर लगाम लगा सकता है। मगर चुनाव आयोग जो है वो इन सब चुनाव सुधारों के लिए नहीं कुछ काम कर रहा, मगर एक अफलातूनी, एक बेकार की चीज, एक बेकार की बहस के अंदर इस तरीके से पीछे पड़ा हुआ है जैसे कि चुनाव आयोग का और सरकार का इसके अंदर कोई बहुत बड़ा फायदा छुपा हुआ है कि किसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही चुनाव किए जाए। धन्यवाद।